So we work in collaboration with premium institutes, which includes IIMs, IITs, XLRI, SPJN, School of Global Management, and many more institutes that we are So you empaneled have with. tier 1 institutes. मोस्टली टीयर बहुत से ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो आर्मी बैकग्राउंड से हमारे पास आए थे और जिन्होंने अपना करियर कॉर्पोरेट में अपना करियर जो है पहली बार न्यूलन के थ्रू आईएम का कोर्स करके स्टार्ट किया 50,000 वर्किंग प्रोफेशनल्स ने अभी तक कोर्स किए हैं पिछले 7 सालों में। ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल अचीव किया है, डायरेक्टर्स मेडल भी अचीव किया है, जिनकी अटेंडेंस भी 90% प्लस होती है, जिनका CGPA भी अच्छा होता है। Last year we had 5,000 plus applications and we were able to select only 200 plus people. So the competition is immense in this program also. So it is not difficult. So hello and welcome back everyone to another episode of Experts Ki Rai, and our today's guest is the founder and CEO of NewLearn, Mr. Sumit Kumar. He has a total of 15 years of experience. He's been into HR, learning and development. And he has started his new venture with IIM online courses through NewLearn. So let us all welcome. So we have with us Mr. Sumit Kumar, sir, and he is the CEO of NewLearn. So, sir, you have 15 years of experience in HR, learning and development. And how come you started this NewLearn? Uh, I always had, I've always been looking out for an opportunity to start something on my own as an entrepreneurial journey. Although it took 15 years to realize my dream. First 15 years I've been more into HR and learning and development. That has always been my core, forte. And especially in the edtech sector, which we started off, it also evolves around learning and development and education. Right? So there's nothing much change except that I'm no longer an employer now. So that's a proud feeling as an employer and employing more than 40 people now. Rest, I think the work remains same. Amazing. So, what are the challenges you faced when you started the EdTech company? See, entrepreneur journey has always been a roller coaster ride. So when you're starting off something on your own, you have to plan each and everything from getting into the cost conscious mode where you spend less and expect that the results are going to be optimum for the team. Selecting the right kind of people has always been a challenge, irrespective whether you work as an HR or you work your own company. Finding right people is something which you, and when you're starting your own organization, writing the right fit of people for your vision is very important. Luckily, I had a good bunch of people initially who supported me. So, what are the challenges have you faced while starting this new journey, NewLearn? A lot of challenges, especially coming from a mindset of an employer to an employer. Not being employed, hiring people for the team, selecting the right kind of people was always a challenge. Spending less money, had a lot of targets from the institutes. So obviously there are a lot of challenges around. But I was lucky enough to have the right set of people initially who call it, as a pilot team for Newland, who supported me, and they're still with us. We started off with 5 employees and now we have 40 plus. It's a proud feeling for us. It is amazing, sir. So, what is there for students, or I would say working professional in NewLearn? See, quickly I'll give you an understanding about the Newlands business. So we work in collaboration with premium institutes, which includes IIMs, IITs, XLRI, SPJN, School of Global Management, and many more institutes that we are. So you empaneled have with. tier 1 institutes. Mostly tier 1, yes. We also work with universities, but that business is very limited. But we majorly focus on the premium institutions of the country. Great. And why choose NewLearn if they wanted to do these programs? See, one is that the course portfolio that we have with us, so we cover almost every domain. So whether we are working with 6 IIMs as of now, and all these IIMs we are having courses in HR, finance, marketing, sales. We have degree programs, we have diploma programs, we have programs into sports management, we have MBA degree, we have programs into
IPM kind of program that which involves people from the 12th standard. So if you look at the portfolio, it's a one-stop destination for students as well as working professionals who can choose their respective domains and upskill themselves. All of these programs are for working professional or freshers can also enroll? Although we don't encourage freshers to join our certification programs, every institute has their eligibility criteria for these programs. So some programs do invite freshers also, but majority of programs are designed for working professionals. Okay. And what is like all of these are executive programs or you have degree programs also? So it is divided into three categories. So one, there are programs which are short duration programs, which is duration of 4 to 6 months. Then we have long duration program for a year to 15 months kind of a program. These are certification programs. Then we have degree programs and diploma programs, which is around 2 years, which we are doing with again with IIMs only. These are awarded as MBAs. But yes, eligibility varies from course to course and degree to degree. So some institutes ask 3 years of experience, some institutes ask less experience also. So it depends institute to institute. So there is also an entrance examination for these courses? Yeah, some courses have entrance examination, but executive programs like certification programs, we don't keep any examination as such. So there are direct admissions. Only thing that we look out is one should have a learning capacity. One should be able to manage the work life, since these programs are designed considering, you are a working professional and you have Saturdays and Sundays free, so there is less disruption to the work schedules, right? But also important that how comfortable you are in terms of online learning and the subject that you are enrolling into. So there are so many factors that we take into consideration before allowing a person to be in the online class for any IIMs. So you basically offers IIM courses, right? So what is there for students and working professional if they choose New Learn? बहुत सारी चीज़ें हैं. So if I have to start from the beginning, सबसे पहला important है that New Learn offers certification programs which can be taken from the comfort of their homes. So सबसे important है कि आपको कहीं जाना नहीं है. आप सैटरडे संडे को टाइम निकाल के घर से क्लासेस ले सकते हैं. IIM का सर्टिफिकेशन आपको घर बैठे बैठे मिल सकता है. न्यू लर्न के कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं ऑडियंस के सामने बताना चाहता हूँ. सबसे बड़ा फैक्ट है पिछले 6 सालों में हमने 50,000 से ज़्यादा वर्किंग प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स को अपस्किल किया है फॉर डिफरेंट कोर्सेज. हमारे पास मोर देन 15 कोर्सेज ऐसे हैं जो एक्टिवली हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं. इस समय 5,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे साथ सैटरडे संडे को क्लासेस में इन्वॉल्व हैं. हमारे पास जो टोटल पूल है फैकल्टीज़ का विच इज़ मोर देन 500. We also have collaborations with industry. They come and take master classes for the participants. So that's another feature that we have. Our team, which is the customer support team, is available on Saturday and Sunday from morning 8 to 11:30 in the night to assist the customers, for their respective technical problems, audio visual problems and all, because everything is being monitored and delivered online. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक IIM का सर्टिफिकेशन आप घर बैठ के किसी इंस्टीट्यूट का कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है. आपको घर बैठे बैठे एक एजुकेशन भी मिल रही है, साथ साथ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल मिल रहा है जो कि पीपल ड्रीम ऑफ. आई ऑल्सो ऑलवेज हैड अ ड्रीम टू परस्यू समथिंग फ्रॉम एन IIM. सो दिस इज समथिंग विच इज कमिंग डायरेक्टली टू योर डोर स्टेप. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब चीज़ें हैं जो न्यू लर्न को डिफ्रेंशिएट करती हैं किसी भी एक कंपनी से. और यही कारण है कि इंडिया के टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स 6 IIMs हैं और बाकी भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो न्यू लर्न को सिलेक्ट करके न्यू लर्न के साथ काम करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द बेस्ट सर्विसेज दैट वी ऑफर टू द मार्केट. Amazing, sir. So, sir, if we talk about the IIM courses, we have this myth that IIM में तो एंटर करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है. इज दैट सो? बिल्कुल है. मैं खुद एक IIM पास आउट हूँ और मुझे पता है कि एक प्रिपरेशन में कितना एफर्ट जाता है. इट्स नॉट ईजी एंड आई स्टिल बिलीव दैट
एक प्रिपरेशन के साथ साथ एक जो डेडिकेशन चाहिए, 2 साल 3 साल की जो प्रिपरेशन है, विच इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ड्रीम पूरी नहीं कर पाते हैं, आई मीन रेगुलर कॉलेज में, रेगुलर आईएम्स में क्लियर नहीं कर पाते हैं। हम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है जो सर्टिफिकेशंस करके हम उस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। ये जितने भी कोर्सेज़ हम न्यूलन में कराते हैं, इन सारे कोर्सेज़ में लास्ट के 2 और 3 दिनों में हम कैंपस इमर्शन भी रखते हैं, जिसमें हम एक पार्टिसिपेंट को एक फ़ील देना चाहते हैं कि एंड ऑफ द course that you also get to meet your dear faculties and peer members also. So that is an added advantage that after completion of course you also go into the campus and your dream is coming true, and meeting people, receiving your certificate from the director of the institute. So these are very important things that is that is something which you always dream of. And we are talking about the online courses. So how beneficial are these online courses? If we talk about the certification programs or degree programs. कोविड के बाद मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई बहुत मेजर डिफरेंस है। कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है हमें, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों या कॉलेज के स्टूडेंट्स हों। कुछ लोगों के तो 3 साल 2 साल की कंप्लीट एजुकेशन ही ऑनलाइन हुई है। सो पीपल आर यूज्ड टू इट नाउ, सो दिस इज समथिंग अ न्यू नॉर्मल लाइफ नाउ फॉर एवरीवन। मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है। द ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप वो 3 घंटे 2-3 घंटे निकाल के वीकेंड में आप क्लासेस ले सकते हैं और सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। सो इसमें कोई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि एक ऑन कैंपस में जाने में और ऑनलाइन पढ़ाई करने में बहुत एक मेजर डिफरेंस है। तो इसमें भी सेम फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी? कोर्स का जो कंटेंट है, कोर्स का जो कवरेज है या पेडागॉजी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ऑब्वियसली अगर आप कैंपस में हैं तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कैंपस में पॉसिबल हैं, वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल नहीं है। बट जहाँ तक फैकल्टीज़ का सवाल है, कंटेंट का सवाल है, या कोई ऐसा एस्पेक्ट जो एक रेगुलर स्टूडेंट को मिल रहा है, ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं है जो एक रेगुलर और ऑनलाइन स्टूडेंट को लगे कि मुझे ये चीज़ रेगुलर का होता तो मुझे मिलता और इसमें नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। So you talked about degree programs. So what kind of programs you were talking about? We offer a degree program with IIM Raipur. We are doing a 4th batch this year. Uh, One batch is already being concluded this year, which is the first batch. Second and third batches are going on, and 4th batch admissions are now going on. This batch is going to commence from December. ये भी एक ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है। बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है एक रेगुलर MBA IIM से अगर आप करते हो, IIM रायपुर से, और एक डिस्टेंस एजुकेशन से आप MBA करते हो। देयर इज़ नो मेजर चेंजेस इन द डिग्री दैट इज़ बीइंग अवॉर्डेड। जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस कोर्स में, वो ये है कि आपको हफ्ते में 13 से 14 घंटे जो हैं वो निकालने होते हैं। वीकेंड में मेजॉरिटी ऑफ क्लासेस होती हैं, बाकी क्लासेस आपकी वेडनेसडे को इवनिंग को होती हैं, और हर टर्म में एग्जामिनेशन होते हैं, असेसमेंट्स होती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो दोनों कोर्सेज में फ़र्क है एक रेगुलर और उसमें। फैकल्टीज़ भी सेम हैं, इंस्टीट्यूट की डिग्री भी सेम है। This program we call it as executive postgraduate program in management, whereas the regular students get the postgraduate program in management. That is a major difference. इस प्रोग्राम में सिलेक्शन प्रोसेस है। जो भी पार्टिसिपेंट्स एप्लीकेशन फिल करते हैं उनको एक इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। पैनल के साथ वो इंटरव्यू होता है IIM रायपुर के, एंड देन दे बेसिकली चेक योर एकेडमिक स्कोर्स, दे चेक योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, they also see your performance during the interview, and then finally they come up with the composite score, and then they shortlist people. Last year we had 5,000 plus applications, and we were able to select only 200 plus people. So the competition is immense in this program also. So it is not difficult. And is there any entrance examination? No, IIM Raipur does not keep any entrance examination. They only keep the person interviews. Since the working professionals can pursue these programs, so how much a time they can spare? Like ideal time कितना देना चाहिए?
सैटरडे For संडे को studies. 5-5 घंटे और वेडनेसडे को 3 घंटे, सो 13 घंटे एक हफ्ते में, और एक टर्म होता है 4 महीने का, और हर टर्म के बाद एग्जामिनेशन होता है। सो 13 से 14 घंटे तो क्लासेस हुई, और अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको असेसमेंट्स एक्सरसाइजेस भी मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 8 से 10 घंटे एक हफ्ते में एडिशनली आपको देने चाहिए। Also, the blue chip companies like Genpact, Reliance, Norfolk, do they differentiate between the aspirants having online degree or regular degree? मैं खुद जेनपैट से ही मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। जेनपैट में इंटरनली भी एक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाता है कोर्सेज़ में, डिफरेंट कोर्सेज़ में। एंड नाउ सिंस आई एम रनिंग माय ओन बिजनेस, वी हैव सो मेनी क्लाइंट्स अदर देन जेनपैक्ट ऑल्सो। इवन जेनपैक्ट एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो बिंग नॉमिनेटेड फॉर सर्टेन प्रोग्राम्स, और इन प्रोग्राम्स ये कंपनी एम्प्लॉयज़ को नॉमिनेट भी करती है इन ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए हमारे थ्रू। हमारे साथ मोर देन 200 कॉर्पोरेट्स इस समय एसोसिएटेड हैं जिनके रेगुलर एम्प्लॉयज़ हमारे साथ कोर्सेज कर रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि इन कंपनीज़ को ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है, बिकॉज दे ऑल्सो बिलीव कि मंडे टू फ्राइडे ऑफिस में काम है, सो दे कैन ऑल्सो स्पेयर देयर एम्प्लॉयज़ ऑन सैटरडे एंड संडे। ऑब्वियसली अगर किसी एम्प्लॉय को उनको एक आईएम में कोर्स करने के लिए भेजना है, विच इज़ नॉट ईजी, बिकॉज आप उसको छुट्टी कराएंगे, उसको यहाँ से एक इंस्टीट्यूट में भेजेंगे, 3 दिन का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होगा, एक कॉस्ट स्पेंड होगा, ट्रैवल होगा, अकोमोडेशन होगा, इवेंचुअली लर्निंग वही रहेगी। सो इंस्टेड कंपनीज बिलीव दैट दे कैन कंटिन्यू देयर वर्क from Monday to Friday, and Saturday Sunday they can take up the classes. So that's an advantage, and that's one of the retention tool also for these organizations, that's how they retain people, that they give them the upskilling opportunities. And do they even differentiate between the salary package of aspirants having online degree, मैं another one having regular degrees? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं खुद एक एचआर प्रोफेशनल रह चुका हूँ। Yes. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट हाउ यू परफॉर्म ड्यूरिंग द इंटरव्यू। एट टाइम्स यू एंड अप रिजेक्टिंग पीपल वो आर रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स, एंड ऐसा भी होता है कि आप एक ऐसे रिसोर्स को हायर कर लेते हो जो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर स्किल पे परफॉर्म करता है और डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि वो एक अच्छा रिसोर्स बन सकता है आपकी कंपनी के लिए। सो मुझे नहीं लगता कि एक रेगुलर एमबीए और एक नॉन रेगुलर एमबीए या एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कितना इंपॉर्टेंट है, बट अपस्किलिंग, अगर आप एक टॉपिक को रेगुलर अपस्किल कर रहे हो और आप सीख रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनीज़ उनको एडवांटेजेस मिलती हैं एम्प्लॉयज़ को, कैंडिडेट्स को उन कंपनीज़ में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि कंपनीज़ को भी वो रिसोर्सेज चाहिए जो रेगुलरली लर्निंग को लेके बहुत सीरियस हैं, और they expect that they should be trained well by the respective institutes. So मुझे लगता है कि कंपनीज भी बहुत वैल्यू देती हैं उनको, एम्प्लॉयज़ को। So you also have never differentiate between the ना मैंने किया है, ना मैं न्यूलन में करता हूँ, और मुझे लगता नहीं है कि, और दैट्स माय एडवाइस टू ऑल एचआर पीपल, दैट you should invite people for the interviews, check their respective skill sets. अगर उन्होंने कोई सर्टिफिकेशन किया है, आई थिंक वी शुड ऑल गिव इम्पोर्टेंस टू व्हाट दे आर राइटिंग ऑन द सीवी. So regular qualification is important, but that should not be the only factor while choosing the right candidate. स्टूडेंट्स का सर ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि क्या उन्हें ये ऑनलाइन कोर्सेज करके प्लेसमेंट मिलेगा? प्लेसमेंट्स, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स में प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं। बहुत सी कंपनीज़ हैं जो ये कमिट करती हैं कि हम आपको इतना परसेंट हाइक दे देंगे, या इतनी सैलरी करा देंगे, आपका प्रमोशन करा देंगे। मेरा ये एक्सपीरियंस है बोथ फ्रॉम एन एचआर पर्सपेक्टिव एंड एज एन एंटरप्रेन्योर, कि किसी वर्किंग प्रोफेशनल को जॉब दिलाना इट इज़ नॉट दैट ईजी। आप उसको नर्चर कर सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हो, उसको एक अच्छे टॉपिक पे अपस्किल कर सकते हो, उसकी नॉलेज गेन करवा सकते हो, बट आप किसी को ये एश्योरेंस नहीं दे सकते हो कि आप एक एक्स अमाउंट ऑफ पैकेज में है वो, और आप X+10 या X+15 पे चले जाओगे ये कोर्स करने के बाद। ना न्यूलन ऐसी कोई कमिटमेंट देता है, बट न्यूलन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो हमारा 6 साल का एक्सपीरियंस है,
जो हमने देखा है कि हमारे थ्रू जो लोगों ने कोर्सेज़ किए हैं, पार्टिसिपेंट्स ने आईएम्स के कोर्सेज़ किए हैं, उनकी हाइक 300% 400% तक भी हुई है। हमारे साथ सक्सेस स्टोरीज़ हमारे लिंक्डइन के पेज पे हैं, जो कि कोई भी एस्पिरेंट जाके चेक कर सकता है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो पार्टिसिपेंट्स ने बनाए हुए हैं। आप उन पे जाके चेक कर सकते हो कि जो हमारी एलुमनाइज़ हैं, मोर देन 50,000 पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे साथ कोर्सेज़ कर चुके हैं, जिनमें से काफ़ी लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल्स, अपनी सक्सेस स्टोरीज़ लिस्ट करी हैं लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और ऑल अदर सोशल चैनल्स, कि कोर्सेज़ करने के बाद आईएम और न्यूलन की सपोर्ट से, with the kind of knowledge that they have gained, they have been able to grow in the market. So ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर है व्हेन वी गो बैक एंड चेक विद द पार्टिसिपेंट्स कि किसी ने हमारे साथ कोर्स किया और उसकी एक अच्छी सैलरी हाइक हुई है। बट मैं फिर कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट प्लेसमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव कोर्सेज में बहुत मुश्किल है। चाहे वो हम हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूट की तरफ से भी बिग नो है कि हम कोई कमिटमेंट जो है इंस्टीट्यूट और हमारी तरफ से नहीं दे सकते। एंड सर, अगर कोई कोर्स करता है तो उसका कैसा करियर प्रोग्रेशन होगा इन टर्म्स ऑफ सैलरी, प्रमोशंस एंड ऑल? मेरे पास तो रियल लाइफ केस स्टडीज़ हैं, जो कि मैं आपके साथ भी शेयर कर सकता हूँ, और एनीवन कैन विजिट आवर लिंक्डइन पेज एंड सी कि बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जहाँ पे लोगों ने करियर प्रोग्रेशन को लेकर रोल चेंज हुए हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, बहुत से ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो आर्मी बैकग्राउंड से हमारे पास आए थे और जिन्होंने अपना करियर कॉर्पोरेट में, अपना करियर जो है पहली बार न्यूलन के थ्रू आईएम का कोर्स करके स्टार्ट किया और आज वो एक सक्सेसफुल पोजीशंस में है। आपको पता है कि एक डिफेंस पर्सनल जब कॉर्पोरेट में एंटर करता है तो इतना इजी नहीं होता उसके लिए, बट हमारे कोर्सेज करने के बाद उनको एक अच्छा ब्रेक मिला कॉर्पोरेट में। हमारे पास बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि वुमेन ऑन सबैटिकल हैं, मैटरनिटी लीव से बाहर आए और उन्होंने अपने करियर को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश की, हमसे कोर्सेज किए एंड दे गॉट वेरी गुड सैलरी एंड ऑल्सो दे वर एबल टू अपस्किल देमसेल्व्स। सो बहुत से एग्जांपल्स है। अगर मैं एग्जांपल्स आज शेयर करूंगा तो आई थिंक हमारा पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि देर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज दैट वी हैव। So we have talked about the courses and all of them are from tier 1 institutes. तो सर, उनका फी स्ट्रक्चर, इट्स लाइक नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड अ हाई फी स्ट्रक्चर, तो आप कुछ ईएमआई फैसिलिटीज़ वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं? मुझे लगता है कि आज की डेट में आईएम्स के कोर्सेज कोई भी अफोर्ड कर सकता है। जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी न्यूलन ऑफ़र कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मार्केट में ऐसा पार्टनर है जो वो फ्लेक्सिबिलिटीज़ पार्टिसिपेंट को दे रहा है। हम लोग इंटरेस्ट फ्री ईएमआईज़ देते हैं पार्टिसिपेंट्स को। कोई भी पार्टिसिपेंट जिसको कोर्स करना है बट फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी इजी नहीं है उनके लिए कि वो 70,000 या 80,000 या 1 लाख का कोर्स आईएम से कर सकें, उनको हमने मंथली ईएमआईज़ का प्लान दिया हुआ है, जिससे वो मंथली पे करके विदाउट एनी इंटरेस्ट वो अपस्किल कर सकते हैं न्यूलन के थ्रू कोई भी कोर्सेज में। सो बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास ईएमआईज़ के। सो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होती है कि आप यू कैन ईजिली गो विद द ईएमआई फैसिलिटीज़। एंड सर, एक और क्वेरी है स्टूडेंट्स की कि जब ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं तो उनके दिमाग में होता है कि सेम फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड होंगे एज रेगुलर डिग्री प्रोग्राम्स, तो आप ये इसका डिफरेंशिएशन बताइए। हम ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर इंश्योर करते हैं। वी वर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया हु बेसिकली स्टार्टेड हैविंग अ कैंपस इमर्शन फॉर पार्टिसिपेंट्स। हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑनलाइन कोर्स करने के बाद 2 से 3 दिन हर पार्टिसिपेंट को मौका मिले कि वो कैंपस में जाए और वहाँ पे क्लासेस अटेंड करे, कैंपस की फैकल्टीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करे, अपने पीयर मेंबर से मिले, एक अच्छी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको कैंपस में जाके। सो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग पार्टिसिपेंट्स को देते हैं ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हमने सारा प्रोग्राम जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठ के किया है एंड वी हैव नॉट इवन मेट आवर डियर पीयर मेंबर्स एंड फैकल्टीज़। सो वो अपॉर्चुनिटी
हमने ही स्टार्ट की थी 6 साल पहले। हमने हर प्रोग्राम में 2 दिन की कैंपस इमर्शन रखी थी, ताकि एंड ऑफ द प्रोग्राम हर पार्टिसिपेंट कैंपस में जाए और वो कैंपस का फ़ील ले, वहाँ की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एक्सेस करे, वहाँ की लाइब्रेरी एक्सेस करे, वहाँ के फैकल्टी से मिले, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स करे, सिमुलेशंस करे, केस स्टडी डिस्कशन करे। सो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए ही हमने 2 या 3 दिन का कैंपस इमर्शन जो है हर प्रोग्राम के साथ रखा, और वो आज भी एक्टिव है। So, ये तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो अब आप कुछ इफ़ यू हैव नंबर्स ऑफ एलुमनाइज, हाउ मेनी नंबर्स? न्यूलन के थ्रू मोर देन 50,000 वर्किंग प्रोफेशनल्स ने अभी तक कोर्स किए हैं पिछले 7 सालों में। तो न्यूलन के तो बहुत से एलुमनाइज हैं। आईएम्स के भी एलुमनाइज हैं जो कि हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, और कंटिन्यूसली कुछ ऐसे भी एलुमनाइज हैं जिन्होंने बार बार हमसे कोर्सेज़ किए हैं। किसी ने 4 कोर्सेज़ किए हैं, किसी ने 3 कोर्सेज़ किए हैं। सो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारा रिपीट जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा है। अगर कोई एक एक्स प्रोग्राम करता है तो वो एक वाई प्रोग्राम के लिए दोबारा से हमारे पास आता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। सो उनको हम बेनिफिट्स देते हैं, उनको हम रेफरल बोनस देते हैं, उनको हम फीस पे वेवर्स देते हैं, और उनको एक डेडिकेटेड सपोर्ट मिलता है न्यूटन की तरफ से, ताकि वो अपना जो फर्दर प्रोग्राम्स हैं वो सक्सेसफुली कंक्लूड कर सकें। And do they even can connect with the alumni? यस। सो हर इंस्टीट्यूट का अपना एक प्लेटफॉर्म होता है, उनका एक अलग यूज़र नेम एंड पासवर्ड होता है, जिसके थ्रू वो लॉगिन करके एक दूसरे एलुमनाइज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। So सर, आपने बताया कि एलुमनाई कनेक्ट भी मिलता है, तो आखिर ये एलुमनाइज किस कंपनीज के होंगे एंड कैसा अच्छा जो कनेक्शन है वो बनेगा? बहुत डिफ़िकल्ट है सारी कंपनीज़ के नाम लेना, बट इफ़ आई हैव टू नेम इट फ्यू, हमारे एलुमनाइज मारुति में हैं, एनटीपीसी में हैं, अमेज़न में, सिस्को, सीमेंस, डीएलएफ, ऑल दीज बिग जायंट्स आर एम्प्लॉयज़, आर एलुमनाइज आर एम्प्लॉयड एट। बहुत सी कंपनीज़ हैं जो हमें नॉमिनेशंस भी देती हैं, और वो हमसे एक्सपेक्ट भी करती हैं कि जो हमसे कोर्सेज कर रहे हैं, इफ़ दे कैन प्लेस देम इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ऑल्सो। सो दोनों चीज़ें होती हैं। कॉर्पोरेट्स भी हमें हेल्प करता है जब उनके पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सो दे ऑलवेज चेक विद अस कि अगर कोई ऐसा एलुमनाई है जो उनके रोल को फिट कर रहा है, तो वी ऑल्सो गेट टू हियर फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स, और उनकी भी रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल अपने एलुमनाइज के थ्रू करते हैं। ओके, हम आपने भी बात करी अटेंडेंस की एंड क्लासेस की, तो अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अटेंडेंस इम्पॉर्टेंट 2 एस्पेक्ट से है। ऑल्दो सारे सेशंस हमारे रिकॉर्ड भी होते हैं, और पार्टिसिपेंट्स बाद में जाके उनको एक्सेस भी कर सकते हैं, बट अगर आप एक्सेस ही कर रहे हैं तो न्यूलन में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज न्यूलन इज़ ऑल अबाउट लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस। हम लोग ये बिलीव करते हैं कि आपकी क्लास पार्टिसिपेशन लाइव क्लासेस में ज़्यादा हो। अगर आप रिकॉर्डेड सेशंस देख के एग्ज़ाम देंगे तो ऑब्वियसली वो लर्निंग उस लेवल पे आपको नहीं मिलेगी जो लर्निंग आपको लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट करने पे मिलती है फैकल्टी से। सो अटेंडेंस इज जस्ट नॉट अ पैरामीटर टू जज दैट वेदर यू आर सीरियस, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट you are able to understand the subject well, and you're also being able to clear the examination in the end of the program, because end of the day you are doing the course for upskilling. You're not doing the course just for the certification. So there are 2 purposes being solved. One is that you are getting to learn new topics. Second is you are getting certified by the IIMs. एंड क्लासेस क्लासेस तो वीकेंड में होती हैं। मैं समझ सकता हूँ कि वीकेंड सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, वेकेशंस हैं, फैमिली डिनर टाइम है, बट 2.5-3 घंटे तो कोई भी निकाल सकता है वीकेंड में, और अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ सीखना है, अपस्किल करना है, तो आई थिंक 2.5-3 घंटे तो मैनेजेबल है। सर, फॉरेन स्टूडेंट्स भी एनरोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और हमारा 10% जो पॉपुलेशन है जो एनरोल करता है न्यूलन के साथ, तो वो इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं, और मेजर कंट्रीज़ जो कवर होती हैं हमारी, यूएसए, जर्मनी, मिडिल ईस्ट से काफ़ी पार्टिसिपेंट्स आते हैं, कनाडा से काफ़ी पार्टिसिपेंट्स हैं, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। So 10% of our overall even revenue comes from the international.
So, will their degree or certificate be globally valid? येस एब्सोल्युटली। आईएम्स के जितने भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हम ऑफर करते हैं, वी मेक श्योर दैट यू नो द कंटेंट इज़ ग्लोबली एक्सेप्टेड। यू नो सो बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं जो इन कोर्सेज करने के बाद इंटरनेशनली अदर लोकेशंस में अपस्किल करने के बाद अलग लेवल पे लिटिल मूवमेंट में प्रमोट भी हुए हैं, और उनकी सक्सेस स्टोरीज भी हमारे लिंक्डइन के पेज पे हैं। सो कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। कौन पढ़ा रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिस्पेक्टिव कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इंडिया से भी यहाँ बैठ के भी वॉर्टन और हार्वर्ड से भी लोग कोर्सेज करते हैं। सो ऑब्वियसली देर इज़ अ वैल्यू देर इन दी कंट्री ऑल्सो। सो सिमिलरली इफ पीपल रिजाइडिंग इन कैनेडा डूइंग अ प्रोग्राम इन इंडिया, देर इज़ अ वैल्यू फॉर इट। हमने कोर्सेज की बात करें तो विच कोर्सेज आर हाईली एनरोल्ड बाय स्टूडेंट्स? जनरली तो ऐसा कोई पर्टिकुलर डोमेन नहीं है जिनमें हमें लगे कि ये कोर्सेज बहुत डिमांड में हैं, बट एचआर के कोर्सेज की बहुत डिमांड है मार्केट में। जनरल मैनेजमेंट के कोर्सेज की बहुत डिमांड है। प्रोग्राम रिलेटेड टू लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट की बहुत डिमांड है। देर आर प्रोग्राम्स स्पेशली टॉकिंग अबाउट द एआई एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, इन प्रोग्राम्स की बहुत डिमांड है। सो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए पार्टिसिपेंट्स आते हैं, या तो रोल चेंज करने के लिए कोर्सेज करते हैं, या एक रोल में रह के आगे बढ़ने के लिए, प्रमोट होने के लिए कोर्सेज करते हैं। सो डिमांड तो ऑलमोस्ट सारे डोमेन की हैं, बट मेजरली मुझे लगता है एचआर, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई एंड ऑल दीज कोर्सेज आर इन वेल इन डिमांड। एंड कैन यू नेम ऑल द इंस्टीट्यूट्स जहाँ जहाँ से ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं? हम लोग अभी 6 आईएम्स के साथ काम कर रहे हैं। आईएम रोहतक के साथ हैं हम एसोसिएटेड, आईएम काशीपुर, आईएम रांची, आईएम शिलोंग, आईएम विशाखापट्टनम। ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, और आईएम रायपुर के साथ हम लोग एसोसिएटेड हैं। एसपी जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट के साथ हम लोग एसोसिएटेड हैं, और हम लोग काम कर रहे हैं निटी मुंबई के साथ भी। सो ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके साथ हम एसोसिएटेड हैं, और हम रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं। और हर इंस्टीट्यूट के साथ हर डोमेन को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। जहाँ जहाँ हमें लगता है कि रिसर्च अच्छी है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की, या फैकल्टीज़ का स्ट्रेंथ अच्छा है, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से हम उस कोर्स को पिक करने की कोशिश करते हैं। और हम अपनी रिसर्च के बेसिस पे हम इंस्टीट्यूट को रिकमेंड करते हैं कि कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए। इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। कुछ रिकमेंडेशंस हमारे यहाँ से जाती हैं, कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ से आती हैं। सो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट रहता है, जिससे ये डिसाइड होता है कि कौन सा कोर्स मार्केट में हमें लॉन्च करना चाहिए जो अपस्किल करने में लोगों की मदद करेगा। सर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम विल दे गेट इन डिग्री, या फिर उनके सर्टिफिकेट में ऑनलाइन वर्ड मेंशन होगा? बहुत से इंस्टीट्यूट्स मेंशन नहीं करते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम, बट अगर मेंशन है भी सही, क्योंकि ये प्रोग्राम 4 से 6 महीने के होते हैं। अगर आप कल को किसी इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, और आप ये शो करते हैं कि आप एक एक्स मंथ से वाई मंथ तक आपने एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया है, सो एचआर ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने क्या नौकरी छोड़ के ये सर्टिफिकेशन किया था, या नौकरी में रहते हुए सब किया था। तो ऑनलाइन लिखा होना या ना लिखा होने में मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। द मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो रोल प्ले करती है। बट मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट जो हैं वो ऑनलाइन यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज जो पैडागॉगी है, जो कंटेंट है, फैकल्टीज़ हैं, वो सेम है जो रेगुलर कॉलेज में रहती हैं। तो इसलिए ऑनलाइन जो है बहुत सी सर्टिफिकेट से मेंशन नहीं होता। और सर, अगर मैं अपने आइडियल पोजीशन की बात करूं या मैनेजरियल पोजीशन की बात करूं, तो कौन सा आईएम इंस्टीट्यूट मेरे लिए बेस्ट रहेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। एक इंस्टीट्यूट को चुनने के लिए आपको 2 से 3 फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं। कई लोग ये समझते हैं कि हम एक टॉप इंस्टीट्यूट्स के साथ कोर्स करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा, बट मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन से इंस्टीट्यूट के साथ आप कोर्स कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन आपको पढ़ा रहा है, उसकी रिसर्च कितनी डेप्थ में है उस सब्जेक्ट के लिए,
और कंटेंट जो है वो इंडस्ट्री बेंचमार्किंग के हिसाब से बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है। अगर आप इन चीज़ों को फैक्टर को लेके एक इंस्टीट्यूट को चुनोगे तो आपको एक राइट चॉइस मिलेगी और आप अपस्किल कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि टॉप इंस्टीट्यूट में जाना है इर्रिस्पेक्टिव कि उस इंस्टीट्यूट में वो टॉपिक रेलिवेंट है नहीं है, सिर्फ मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, एक पीस ऑफ पेपर चाहिए जो मैं लिंक्डइन पे लिख सकता हूँ कि मैं सर्टिफाइड हूँ एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एंड वन मोर थिंग सर, क्या ऑनलाइन कोर्सेज से जब मैं आईएम्स के कोर्सेज करती हूँ तो मैं वहाँ की फैकल्टी से भी इंटरेक्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। मोस्टली आईएम्स फैकल्टी जो हैं अपनी ईमेल आईडीज़ एंड फ़ोन नंबर शेयर करती हैं सेशंस के दौरान। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि आप कोर्स ख़त्म होने के बाद 2 या 3 दिन के लिए आप कैंपस इमर्शन के लिए भी जाते हैं। सो वहाँ जाके आप पार्टिसिपेंट्स सारी फैकल्टीज से मिल सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और तो वो अपॉर्चुनिटी है। बट अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप फ़ोन पे या ईमेल के थ्रू उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन पूरा इंटरेक्शन रहता है? ऑनलाइन में पूरा इंटरेक्शन रहता है, चैट ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग लाइव चैट भी कर सकते हैं फैकल्टीज़ के साथ, हम लोग अपना ऑडियो ऑन करके बात भी कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली अगर 60 से 70 लोग एक क्लास में बैठे हैं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारे ही बात करें उस प्लेटफॉर्म पे। सो एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए हमने कुछ चैनल बनाया हुआ है कि एफएक्यू सेशन होता है हर सेशन के बाद, ताकि हर पार्टिसिपेंट को अपॉर्चुनिटी मिले कि उसके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकता है। और सर पीयर कनेक्शन? पीयर कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। हमारे हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू हम पीयर टू पीयर इंटरेक्शन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनते हैं कोर्स में। उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और जब हम इंस्टीट्यूट जाते हैं तो ऑल पार्टिसिपेंट्स मीट ईच अदर, तो वहाँ जाके हम लोग कनेक्ट करते हैं। बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं हमारे जो लिंक्डइन पे बने हुए हैं जिन लोगों ने कोर्सेज़ किए हैं 2018 में, 2019 में, और अब जाके उन्होंने लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है और दे आर वेल कनेक्टेड टू ईच अदर। सो पीयर कनेक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि वही एक नेटवर्किंग का एक सोर्स है जो आपको हेल्प करेगा। एंड दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड। एब्सोल्युटली। Also, sir, we do have different institutes and courses, but मेरा ideal course क्या है, मेरे लिए perfect fit क्या है, वो कैसे पता चलेगा मुझे? बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, बट वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमारी एक काउंसलिंग टीम है। वी आर अवेलेबल ऑन चैट, वी आर अवेलेबल ऑन फ़ोन कॉल्स। पार्टिसिपेंट्स या कोई भी एस्पिरेंट हमसे कोर्स करना चाहता है तो हमारी वेबसाइट पे रीच आउट कर सकते हैं, हमसे चैट कर सकते हैं। और हमारे पास जो काउंसलर्स हैं, मोस्टली दीज काउंसलर्स आर फ्रॉम द एचआर बैकग्राउंड. They understand the career trajectory of all the domains, so they understand that if you're working in HR, what sort of HR courses you should be enrolled into. If you are coming from a finance background, then what sort of finance courses that you should be enrolled into. So all these counselors are well trained from a perspective that they understand the career trajectory well, and they can guide you well. Okay. So, sir, with this, thank you so much for this lovely session. And Thank you so I much. hope we'll meet again. Yeah. And thank you so much. And अगर आपको अभी भी कोई भी queries हैं तो you can always ask us on comment section. Thank you so much. Thanks.